السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ جہلم کے سکول میں دیوار گرنے سے بچوں کی ہلاکت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت سے ضمانت نہ ملنے پر پرنسپل احاطہ عدالت سے فرار ہو گئی۔ جہلم کے سکول کی دیوار گرنے کا واقعہ ہوا اور سکول پرنسپل کی عبوری ضمانت ایڈیشنل سیشن جج نے منسوخ کر دی۔ ضمانت نہ ملنے پر سکول پرنسپل احاطہ عدالت سے فرار ہو گئی۔ پولیس کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ تاحال گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ سکول کی دیوار گرنے کے افسوسناک واقعے میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 26 زخمی ہوئے تھے۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ عارف والا کا قدیمی پیر و پیر قبرستان 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی آماجگاہ بن گیا۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا کے علاقے چاک نمبر 34 کےبی کا تاریخی پیرو پیر قبرستان 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قبریں مسمار اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس قبرستان کی زمین پر لوگوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے پریشان۔ کھادر نہر کے بالکل کنارے پر واقع ہے، اس لیے یہ جانوروں کے لیے آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ یہاں کے مکینوں کا سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے، بابا پیر باغ کا قبرستان ہے جی، بڑی اس طرح بے روب بھی کر دیں لوگ، بکریاں مال مول وچ پا دیں، مہربانی کیتی جاوے تے اندا 4 دیواری دتی جاوے، بڑی بے رومتی ہوندی ہے۔ یہاں کی عوام نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی رقبے کی زمین واگزار کرائی جائے اور اس کی 4 دیواری بنوائی جائے تاکہ ہمارے پیاروں کی قبریں بے حرمتی اور مسمار ہونے سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین فیض فرید کچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ مانا والا کی عام شاہراہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ میاں شیر محمد زرگر کی رپورٹ۔ مانا والا فیصل ٹون تا جاتری روڈ عرصہ دراز سے مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ 18 سال پہلے یہ روڈ تیار کیا گیا، لیکن دوبارہ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے روڈ حال بے حال ہو چکا ہے۔ روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے جگہ جگہ گہرے گرے بھر چکے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ کے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ فیصل ٹاؤن سے یاتری کو روڈ جانے والا یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ کم سے کم 15 سے 18 سال ہو چکے ہیں، اس روڈ پر نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ عوام ڈیلی بیس پہ آنے والے مشکلات کا شکار ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس روڈ کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے اور عوام کو سہولت دی جائے۔ راہگیر منٹوں کا سفر گھنٹوں پر طے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مقامی رہائشی اور راہگیروں کی حکومت وقت سے اپیل ہے کہ فیصل ٹون تا جاتری روڈ کی جلد سے جلد مرمت کروائیں تاکہ شہری روزانہ کے ہونے والے حادثات سے بچ سکیں اور پرامن سفر کر سکیں۔ میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، مانا والا۔ پتوکی میں وابڈہ اہلکاروں اور ٹھیکیداروں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے سڑک کے درمیان بجلی کے پول موجود ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں چودھری جمیل حیدر۔ حکومت بدلی، موسم بدلا، ایک نہ بدلا تو وابڈہ کا نظام نہ بدلا۔ لاہور والے اڈے سے لے کے حلہ روڈ بائی پاس تک 3 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کر دی گئی، لیکن وابڈہ کی غفلت، لاپرواہی اور نااہلی کی وجہ سے بجلی کے پول اور ٹرانسفارمر سڑک کے درمیان موجود ہیں جو سڑک کے سائڈ پر ہونے چاہیے تھے۔ بجلی کے پول سڑک کی تعمیر سے پہلے ہی ان بجلی کے پولوں کو ایک سائڈ پر لگایا جاتا۔ وابڈہ اہلکاروں اور ٹھیکیداروں کی غفلت کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اور تاجر برادری کی بار بار اپیل پر ابھی تک وابڈہ اہلکار اور بجلی کے پول ہٹانے پر تیار نہیں۔ اسی وابڈہ چکر مار کے کھپ گئے ہیں، ایتھے روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہویا ہوندا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے ان پول کی وجہ سے آئے روز حادثات کی وجہ سے جانی مالی نقصان معمول کی بات بن گئی۔ اہل علاقہ نے چیئرمین وابڈہ، وفاقی وزیر پانی و بجلی سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تاکہ کسی بڑے حادثے اور جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری جمیل حیدر، سچ نیوز، پتوکی۔ چوک سرور شہید میں کھادوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث غریب کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ چوک سرور شہید میں گراں فروشوں کی شامت آ گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کوٹہ دو نے مہنگے داموں کھاد بیچنے والوں کو جرمانے عائد کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کو بھی کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت نے چترال کی عوام اور جنگلات پر ایک اور بم گرا دیا۔ LPG گیس پلانٹ کا منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ گل حماد فاروقی کی رپورٹ۔ کی لاگت سے زمین خریدی گئی تھی۔ اس منصوبے کے منسوخی سے علاقے کے عوام میں کافی مایوسی پھیل گئی۔
मैं पिछली हुकूमत जो इधर गैस प्लांट की मंजूरी किया था, अपना इमरान खान साहब को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस गैस प्लांट को हमारे लिए जल्दी से जल्दी मंजूरी दे। चित्राल में ये मसला है कि लोगों को इधर गैस का भी मसला होता है, दूसरी बात लकड़ियों का भी इधर बहुत तंगी है। तो इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने ये किया था कि इसको गैस के लिए, लोगों के लिए सहूलत के लिए इसको ख़रीदा था, तो वापसी इसको गिलगी शिफ्ट किया गया। और हमारे यहाँ सर्दी बहुत होती है और इसी वजह से लकड़ियाँ जो हमारे जंगलात जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते, ख़त्म हो जाते हैं। जंगलात से मुतालिका इदारों के रिकॉर्ड के मुताबिक चतराल में सालाना तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख मन लकड़ी जलाया जाता है, जिनमें 95% शाहबलूत की लकड़ी काटा जाता है। यहाँ के लोग खाना पकाने और खुद को शदीद सर्दी से बचाने के लिए मजबूरन सख्तनी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गैस मनसूबे की मनसूखी से न सिर्फ चतराल के माहौलियात पर निहायत मनफी असरात पड़ते हैं, बल्कि पूरे खिते को इससे नुकसान पहुंचता है। चतराल की सियासी और समाजी तबक़े फ़िक्र तब्दीली सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चतराल के अवाम को मुफ्त या सस्ती बिजली दी जाए या गैस प्लांट के इन मंसूबों को दोबारा बहाल किया जाए ताकि हमारे जंगल बच जाए। मुकामी लोग तब्दीली सरकार से मुतालबा करते हैं कि चतराल में फ़ौरी तौर पर LPG गैस प्लांट लगाया जाए ताकि जंगलात पर बोझ कम हो। गुल अहमद फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। जालसाजी का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। 600 लीटर जाली दूध तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लिया में मिल्क कलेक्शन यूनिट पर छापा मारा गया। इस दौरान मुज़र सेहत दूध को तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूध में पानी, केमिकल्स और पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट में पाउडर्स और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। जाली दूध में कुदरती फीट और ग़िज़ाइयत की भी कमी रिपोर्ट हुई है। टंडोजाम में बच्चा कुएं में गिरकर जाँ बाक हो गया। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतजामिया से कुएं को बंद करने का मुतालबा कर दिया। जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट। टंडोजाम के इलाके खडपाड़े में तामीर कुएं में 4 रोज कबल 13 साला बच्चा अली जी गिरने से हलाक हो गया था, मगर इंतजामिया ने इस कुएं को बंद करने या 4 दीवारी करने के लिए ताहाल कोई इकदामात नहीं किया है, जिसकी वजह से कुएं के करीब वजवार के इलाके मकीन सख्त खौफ व हिरास का शिकार है और उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस मौके पर इलाके मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड के बिल्कुल करीब कदीमी खडपाड़े में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से सीवरेज के गंदे पानी को अलग से रखने के लिए कुआं बनाया गया था। ये खड्ड ऐसे दलदल की तरह है कि दिखने में नजर नहीं आती कि दलदल। कुछ दिनों पहले एक बच्चे का हादसा हुआ है। इंतजामिया से, बल्दिया से हम दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इस खड्डे का कुछ किया जाए। बनाने के बाद इसकी देखभाल नहीं की गई और न ही 4 दीवारी की गई, जिसके बाद इस कुएं में सीवरेज के गंदे पानी से भर गया और कचरा ऊपर होने की वजह से कुआं नजर ही नहीं आता था, जिसकी वजह से चंद माह कबल एक बच्चा गिरने के बाद 4 रोज कबल बच्चा अली जी भी गिरकर फौत हो गया। उन्होंने कहा कि इसमें मुतअद्दिद बार बकरियां भी गिरकर मर चुकी है। हम जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं इसे बंद किया जाए। इलाके मकीनों ने पुरजोर मुतालबा किया है इंतजामिया से इस खड्डे को बंद करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़, टंडोजाम। बागों का शहर नजर आ गया। लाहौर के हुस्न को स्मोग ने ग्रहण लगा दिया। आलूदगी में मामूली कमी के बावजूद लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में 408, गुलबर्ग में 385, मॉडल टाउन में 356 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 2 में 306, FC में 389, अल्लामा इकबाल टाउन में 320, पंजाब यूनिवर्सिटी में 320, एडन कॉटेजेस में 289 और अनारकली बाजार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब सूबाई इंतजामिया स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। एक हफ्ते के दौरान 225 मुकदमा दर्ज करके 153 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रवां साल अब तक आलूदगी फैलाने पर 2217 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 2294 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना था कि स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरी स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ पुलिस को इत्तला दें। भावनगर में स्मोक से बचाव के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। भावनगर में स्मोक से बचाव की हिफाजती तदाबीर अपनाने से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौका पर आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। जिले इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से शहरियों को स्मोक से बचाव की तदाबीर के पम्फलेट्स और मास्क तकसीम किए गए। हाफिजाबाद समेत जिला भर में चीनी का बहरान गंभीर सूरत अख्तियार कर गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल।
हाफिजाबाद जिला भर में चीनी का बहरान गमगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। लोग चीनी हुकूमती रेट पर तलाश में मारे मारे फिरने लगे। चीनी ब्लैक रेट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जिली इंतजामिया ख्वाबो खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। हाफिजाबाद शहर और इसके मुसाफाती इलाका जात में इस वक्त दुकानों पर चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जिला हाफिजाबाद में और यहाँ पे चीनी जो है वो मिल नहीं रही है। जिस दुकानदार के पास है वो 150 रुपए किलो दे रहा है और हुकूमत का जो रेट है वो 90 रुपए किलो है, इसलिए चीनी भी नहीं मिल रही, आटा भी हुकूमत के रेट पे नहीं मिल रहा। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानब से चीनी के हुकूमती रेट पर दस्तयाब होने के खोखले बयानात देने के अलावा अभी तक किसी किस्म का अमली इकदाम देखने में नहीं आ सका। डुडियाल में लगे लंडा बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे। देखेंगे आसिफ अली की रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई ने जहां गरीब आदमी को परेशान कर रखा है, वहीं पर डुडियाल में लगे लंडा बाजार भी वीरान पड़े हैं। सर्दियां शुरू होते ही लंडा बाजार में सर्दियों के सस्ते कपड़े, जूते और बाकी इस्तेमाल की अशिया के लिए रश लग जाता था, मगर इस दफा वो भी गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। जो महंगाई की वजह से गाहक नहीं है और बिल्कुल काम नहीं है, काम की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन माल अच्छा माल है लेकिन गाहक नहीं है। सारा दिन दुकानदार भी गाहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। मलकवाल में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए 10 रोज़ा मेगा फार्म्स गैदरिंग इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम में ज़रूरी माहिरीन ने किसानों को गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए साइंसी बुनियादों पर तरीक़ाकार बताया। गुज़िश्ता 10 रोज़ से जारी गंदम बढ़ाओ मुहिम में ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तालिबात ने किसानों को ट्रैक्टर चलाकर गंदम की मशीनी काश्त भी सिखाई। सच न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कोट सब्जल में असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने एहसास कफालत सेंटर संजरपुर दोबारा बहाल कर दिया। कोट सब्जल के नवाई इलाके संजरपुर में एहसास कफालत सेंटर जो कुछ दिन पहले बंद किया गया था, सच न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। मुजफ्फरगढ़ में महकमा फिशरीज आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार वॉक का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। महकमा फिशरीज की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में सेमिनार मुनक्किद किया गया और वाक भी की गई। बंजर जमीनों को काम में लाकर ज़र मुबादला में इजाफा करना और लोगों की आमदनी को बढ़ाना है और तकरीबन 20,000 एकड़ पर फिश फार्मिंग हुई है। नई इकसाम की फिश मुतारिफ कराई जा रही है, जैसा कि झींगा, तलापिया वगैरह नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है। सब्सिडी दी जा रही है जो कि 1,20,000 फी एकड़ फिश फार्मिंग के लिए है। इससे पहले भी मुख्तलिफ स्कीम भी चलती रही है जिससे फार्म्स को बहुत फायदा हुआ है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। इंसदाद जराइम के लिए सवाबी पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। पुलिस का जिला सवाबी से जराइम के खात्मे और जिला को अमन का गहवारा बनाने के लिए जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ और रोजमर्रा की बुनियाद पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और स्लैब चेकिंग का सिलसिला जारी है। टोबा टेक सिंह की पुलिस का डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस हवाले से जानिए सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह डीएसपी सदर सर्कल आसिफ शाह की सरबराही में पुलिस ने डकैती, राहजनी और हाउस राबरी करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिटी पुलिस ने मोहल्ला मोहम्मदपुरा में हाउस राबरी की वारदात करने वाले 5 मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गैंग का सरगना अलीम और बोला और उसके 4 साथी उस्मान, तलहा, अवैस और शबीर शामिल हैं। डीएसपी सदर सर्कल आसिफ शाह ने बताया कि मुलजमान ने बरतानिया से आई हुई खातून को गन पॉइंट पर लूटा और फरार हो गए। 39 तोले गोल्ड और 300 पाउंड और 2.5 लाख रुपए और असला जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो हर चीज़ रिकवर हुई। वारदात करवाने वाले जो 109 में आए उनको भी पकड़ के चालान किया और चालान मुकम्मल मुरतब करके अदालत में भिजवा दिया। डीएसपी ने बताया कि मुलजमान से 39 तोले तलाई जेवरात, 300 बरतानवी पाउंड, 2,50,000 नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया है। डीएसपी ने मजीद बताया कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। कातिल डेंगू मच्छर के डंग पंजाब में मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। इस हवाले से केसेस में कमी वाजे हुई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 51 मजीद अफराद मुतासर हुए। महकमा सेहत पंजाब के आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर से डेंगू के 70, गुजरांवाला से 6, जबकि कसूर और रावलपिंडी से 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल सूबे में अब तक डेंगू बुखार के 23,687 जबकि लाहौर में 17,097 केसेस सामने आ चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में 1,255 और लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 847 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटों के दौरान सिर्फ 7 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से रूरल एरिया के 3 और अर्बन से 4 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में 4,542 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से 19 अमवात भी हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 51 अफराद मुतासिर हुए। सूबे भर में डेंगू के एक्टिव केसेस की तादाद 163 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 10,020 हो गई।
पाकिस्तान में कोरोना केसेज और अमवात की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 अमवात और 322 नए केसेज रिपोर्ट हुए। हुकूमती इकदामात, SOPs की पासदारी और वैक्सीनेशन के असरात आलमी वायरस कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 37,148 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 2,16,82,105 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 28,663 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,82,195 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 22,562 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 1,043 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 12,30,970 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। सवात की दिलकशी और खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। देखिए वकार सवाती की रिपोर्ट। खजान का मौसम हो या बहार का, गर्मी हो या फिर सर्दी का मौसम, हसीन मनाजिर सारा साल स्वात की खूबसूरती में पेश होते हैं। वैसे स्वात का तो हर मौसम खूबसूरत होता है, लेकिन हम स्पेशली मौसम खजान से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इधर आए हैं। मौसम खजान में दरख्तों से जर्द सब सुर्ख मुख्तलिफ अक़साम के पत्ते गिर कर ज़मीन में रंग बरंग कालीन की शक्ल इख्तियार करता है, जिसने स्वात की हुस्न को मजीद दोबाला कर दिया। वैसे तो स्वात का हर मौसम बहुत दिलफरेब होता है, लेकिन जब यहाँ पे मौसम खजान शुरू होता है तो हर जगह सूखे सूखे पत्तों से दिलों को सुकून मिलता है। स्वात में मौसम खजान की दौरान जगह जगह सड़क पर सफर के दौरान हर तरफ खजान की दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं। लाल और जर्द रंग के पत्ते मौसम खजान की पहचान है। गिरती पत्तों को देखकर दिल समंदर में यादों का तूफान बर्पा होता है और अपनों की बहुत याद आती है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच TV स्वात। जाड़े का संदेशा आया, डहरकी में रजाइयों की मांग में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। सर्दी में इजाफे से रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया। बढ़ती हुई महंगाई ने इसे भी न छोड़ा। कपड़े और रुई की कीमतों में इजाफे से रजाई बनाने वाले दुकानदारों ने रजाइयों की रेट दुगने कर दिए हैं, जिससे रजाई लेने वाली गरीब आवाम की मुश्किलात बढ़ने लगी। रजाई लेने वाले गरीब आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर है और खरीदारों का कहना है, पर रजाई लेने आए तो 1500 की थी, अब ये लेने आए तो 2500 3000 की है। दिनों दिन महंगाई हो जाए, गरीब आदमी किधर जाए। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन नौशाब के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डहरकी। मौसम सरमा में गुड़ की मांग में इजाफा, मर्दान में गुड़ की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर हुसैन। मौसम सरमा के आते ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गुड़गानियाँ भी फाल हो जाती है। गुड़गानी को गुड़ बनाने के रिवायती कारखाने को कहा जाता है। गुड़ बनाने के लिए जमींदार गन्ने को गानी में लेकर आते हैं। गन्ने के रस को कंक्रीट से बनी नालियों से बड़ी कड़ाही तक पहुँचाया जाता है, जहाँ रस को गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के चलके और बाकियात को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। रस गाढ़ा होने के बाद इसको कड़ाही में ही ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इसको हाथों की मदद से गुड़ की शक्ल में तैयार किया जाता है। गुड़ को बोरियों में बंद करके मुकामी और बैनुल-अक़वामी मंडियों में फिरोख्त के लिए भिजवाया जाता है। रवायती तौर पर गन्ने से गुड़ बनाने का अमल आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जारी है। गुड़ चीनी का एक बेहतरीन नेमुल बदल है। गुड़ का इस्तेमाल इंसान को शुगर और दीगर मुज़ी अमराज से भी बचाता है। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। पतोकी के सरकारी स्कूल में 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर भट्टी। पतोकी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ग्राउंड में खेलों के फरोग के लिए 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में जिला भर के स्कूल्स की टीमों ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात में हिस्सा लिया। तुलबा खिलाड़ियों ने टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रस्साकशी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और दीगर मुकाबलों में शानदार खेल पेश किया। तकरीबन 9 साल बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल होने पर तुलबा के साथ असातिज़ा भी इस अमर पर इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल पत्तोकी के PT मास्टर औरंगजेब ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये गेमें बंद थी, बच्चे बेरहरवी का शिकार थे, ताश के ऊपर, लूडो के ऊपर, जुए के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, हाँ जी, नशावर जो अशिया हैं
उनके ऊपर लगे हुए थे। स्पोर्ट्स गाला में जिला भर के स्कूल्स की टीमें मुख्तलिफ खेलों में मरहलावार पहले तहसील लेवल और कामयाबी के बाद जिला लेवल पर मुकाबला जात में हिस्सा ले सकेंगी। दूसरी तरफ खेलों की इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले नौजवान खिलाड़ी बेहतरीन खेल पेश करके न सिर्फ अपने स्कूल्स बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज पत्तों की। पंजाब भर की तरह चन्यूट में भी स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रजवान नसीर की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जिला चनियोट में भी स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसमें तहसील चनियोट, तहसील लालियां और तहसील बुआना की रेस्क्यू 1122 की टीमों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में क्रिकेट, रस्साकशी, लॉन्ग जंप, 100 और 400 मीटर की दौड़ कराई गई। क्रिकेट मैच में तहसील चनियोट रस्साकशी के मुकाबले में चनियोट, लॉन्ग जंप में चनियोट, 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में चनियोट और 400 मीटर दौड़ में तहसील बुआना की टीमें नुमायां रही। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चनियोट मैडम तारा खान ने जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि इन खेलों का मकसद रेस्क्यूज की ज़हनी और जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर करना है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम तारा खान की जानिब से जीतने वाली टीमों में नगद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गयी। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज चनियोट। कुदरत ने मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज पोशीदा रखा है। ज़ियाबतीस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए बेहतरीन फल तसव्वुर किया जाता है पपीता। देखिए ये रिपोर्ट। जहां अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार फल पैदा किए, वहीं पपीते का फल जो कि न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवायद का हामिल है, वहीं इसकी काश्त से लाख रुपए की आमदन भी हासिल होती है, जिससे मुल्की तरक्की में बेपनाह इजाफा भी किया जा सकता है। इस हवाले से किसानों का सच न्यूज से कहना था कि एकड़ दे विच 700 तो लाके ते 900 पौधा लगता है जी। इनका लावन का टाइम सितंबर दे अक्तूबर ते नाल जिहड़ा मार्च विच भी है। इनू अच्छी मैनेजमेंट करके 1 एकड़ दे विचों 25 तो 30 लाख रुपए कमाया जा सकता है। जदीद दौरे जिंदगी में किसानों को नए और जदीद तर्ज जिंदगी में कामयाबी के लिए अगर हुकूमत वक्त की सरपरस्ती हासिल हो तो पपीते की काश्त से न सिर्फ इंसानी जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी बल्कि मुल्की माइशत पर भी मस्बत असरात पड़ेंगे। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। खुश जायका, रसीला, चाशनीदार, सुर्ख याकूती रंग वाला दानेदार शहनशाह फल अनार। अनार कसीर नबाताती मुरक्कब का मजमुआ है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ रजा। अनार छोटे छोटे सुर्ख याकूती रंगत का दानेदार रसीला फल है, जिसका बालाई हिस्सा सख्त और खाने के काबिल नहीं होता, जबकि इसके खोल में महफूज सैकड़ों खुर्दनी दाने होते हैं जो रसीले, मीठे और ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं। जायके के लिहाज से अनार की 3 इकसाम शीरीं, तुर्श और मंजूश यानी खट्टा मीठा हैं। अनार उमूमन मौसम सरमा की आमद पर ठेलों और दुकानों पर दस्तयाब होता है। अनार ग़िज़ाई और तिब्बी खुसूसियात के बाइस कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा तस्लीम किया जाता है। इस फल को जन्नत का फल भी करार दिया गया है। यही नहीं बल्कि अनार को फलों में शहनशाह फल होने का एजाज़ भी हासिल है, क्योंकि अनार में ऐसे नबाताती मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो दूसरे आम फलों में नहीं पाए जाते। अनार की आफादत से मुताल्लिक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर असमा का कहना है कि अल्लाह पाक ने हर फल में बड़े फ़वाइद रखे हैं और अनार मौसम सरमा की सौगात है हमारे पास। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई थी जिसमें ये साबित बल्कि प्रूव हुआ था कि इसमें मोटापे के खुलियात को कम करने की अवामिल शामिल हैं। इसके अंदर और ये विटामिन सी और दूसरे खुलियात काफ़ी कैंसरों से बचाता है, जिसमें आंतों का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर शामिल है। अनार का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें 2 तरीक़े काबिल ज़िक्र हैं। एक मशरूब की शक्ल, दूसरा अनार के दाने निकाल कर मसाले के साथ खाया जाता है। तिब्बी माहिरीन ने अनार के शरबत को एक बेहतरीन टॉनिक करार दिया है। अनार के जूस में कैलोरीज, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर और स्टोलिक समेत दीगर अज्जा शामिल होने की वजह से अनार के जूस का इस्तेमाल हमें अनदेखी और अनगिनत बीमारियों से महफूज रखने में मुआविन और मददगार साबित होता है। और इसी तरह अनार का छिलका जिसे फेंक कर ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अनार के छिलकों का सफ़ूफ़ का इस्तेमाल अमराज़ क़ल्ब, गले, दांत, कमज़ोर हड्डियों, निज़ाम इंहिज़ाम और जल्दी अमराज में बेहद मुफीद साबित होता है। एक अनार खाना जो है आपको एक नहीं अनगिनत अनदेखी बीमारियों से महफूज और मामून रखता है, इसलिए अनार खाएं, सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त व तवाना रहें। कैमरा टीम के हमारा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, नवाबशाह।
सखर के दिल में मौजूद अरसा दराज से घंटा घर में घड़ियाल तो लगे हैं, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से बंद है। हाजी रियाज की रिपोर्ट। सखर शहर में बड़े बड़े बाजारों, शाही बाजार, शराफा बाजार, अनाज बाजार, सब्जी मंडी, गोश्त मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मोबाइल मार्केट के रास्ते घंटा घर चौक से निकलते हैं। अंदरून शहर और बैरून शहर से आने वाले अफराद की नज़र घंटा घर पर लाजमी पड़ती है, लेकिन अफसोस इंतजामिया की अदम तवज्जो और नाअहली की वजह से घंटा घर के घड़ियाल चलने से महरूम हैं, जिससे इसकी बदसूरती वाज़े होती है। देखें, इस वक्त हमारे सखर शहर के खूबसूरत तरीन घंटाघर को कम से कम इस वक्त रंग रोगन होना चाहिए, और इसके जो घंटाघर का घड़ियाल जो है वो बहुत अरसे से, कई अरसे से ख़राब है। कम से कम उसको भी मुस्तकिल तौर पे वो सही होना चाहिए और इसके ऊपर रंग रोगन करके इसको बेहतर तरीके से किया जाए। में एक घंटाघर पे है और दूसरा हिलटॉप पार्क है, वहाँ पर है, तीसरा रोड़ी शहर में है। ये जैसे लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस हुई थी तो सखर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको फ़ाल बनाया हुआ था। जो सखर के मेयर थे इन्होंने इनको फ़ाल बनाया था। फिर कुछ अरसे के बाद, गुजरने के बाद, ये मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये नॉन फंक्शनल बन गए। तो मेरी गुजारिश है सखर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये सखर की खूबसूरती है और ये अंग्रेज़ों के दौर के लगे हुए हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने बंगलों को तो खूब संवारा है, लेकिन अफसोस शहर का दिल घंटा घर संवरने से महरूम है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सखर। सर्दियों की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स के रेट्स भी बढ़ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राव नोमान। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आमतौर पर सर्दियों में ज़्यादा होता है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस बार ड्राई फ्रूट्स की कीमतें हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं। इस साल भी चिलगोज़ा 7,500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अपनी पहली पोजीशन पर बरकरार है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदार कम हैं। कस्टमर तो हर बंदा परेशान है, किसी शोबे में भी चला जाए, किसी शोबे में भी चले जाए परेशान है। वो बिजली के बिल भरें, आटा घी दाल पूरे करें, मकान का रेंट पूरा करें या ड्राई फ्रूट का है। खरीदारों का कहना है कि ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि आम आदमी के लिए इसे खरीदना मुश्किल है। इस साल ड्राई फ्रूट के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले साल की निस्बत, तो इस वक्त मैं मायूस होकर यहाँ से जा रहा हूँ। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि महंगाई के इस दौर में अवाम भी ड्राई फ्रूट से दूर होती जा रही है। कैमरामैन अशीक यासीन के साथ राव नोमान, सच न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर मौसमियात ज़रताज गुल ने अपनी सालगिरह दारुल एहसास के यतीम बच्चों के साथ मनाई। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। डेराजी खान। वफाकी वज़ीर मौसमियात ज़रताज गुल ने अपनी सालगिरह मनाई दारुल एहसास के यतीम बच्चों के साथ। उनके साथ मुशीर सेहत हनीफा पिताफी भी थे। मैडम ज़रताज गुल दारुल एहसास तशरीफ लाई। मैडम ने अपनी सालगिरह का केक काटा। बच्चों ने मैडम को मुबारकबाद दी। अपनी बर्थडे का इनका सेलिब्रेट करने का मकसद ये था कि अपनी खुशियों में इनको शामिल करके जितने हमारी सताहत थी इनके साथ गिफ्ट दिए। या दारुल अतफाल हो, यहाँ पे जितने जो बच्चे ये हमारे बच्चे हैं, तो मैडम ने ये एक अच्छा एक ट्रेंड सेट किया है कि उन्होंने अपनी ये बर्थडे इन ऑर्फन बच्चों के साथ यहाँ पे बर्थडे मनाई है। वफाकी वजीर ने बच्चों में नकदी रकम बतौर गिफ्ट दी। बच्चों की फरमाइश पर उनको बैट भी और बाल भी दी। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरागाजी खान। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।